ओके एंड आई गेस बहुत सारे सिन्नर के बच्चे हैं, आप लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं, राइट? इस बैच में सिन्नर के कितने बच्चे हैं? सो दैट आई वोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। ओके सिद्दीक, आपको इसके अलावा ओनली यू? ओके अनुष्का ऑल्सो। ओके सो आप लोगों को देखते हुए मीन सिन्नर के बच्चे जिनके अभी एग्जाम्स हैं, सो आई वोंट टेक दैट मच ऑफ टाइम। I have more than 100 questions actually, but we will try to solve first 50 questions. पहली चीज ये, and after solving those questions, let's check out कि हम लोग किस लेवल पे हैं, कितना और पढ़ने की जरूरत है। I'm going to show the PDF. Can everyone see the screen? I will zoom for Yes, you. ma'am. Yes, Okay. ma'am. So I'm giving 5 minutes of time so that you all can read whatever is on the screen. It's a brief information related to cell cycle and cell division. और इससे क्या होगा, आप लोगों को वापस से सब कुछ याद आ जाएगा आपने क्या क्या पढ़ा है। एंड इफ यू हैव योर नोट्स यू कैन ओपन दैट नोट्स ऑल्सो। जिस ओपन बुक टेस्ट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सारे आंसर्स आने ही चाहिए। यू कैन सर्च द आंसर्स टू, but I want everyone's participation. So take 5 minutes of time, read it. If you're finished with it, then tell me. Ma'am, please scroll down.
Done with the reading? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, let me show you the question. Okay, these are the first three questions of the first page. Okay, you can take your time, 2-3 minutes, and tell me who would like to answer the question. मैम 3 का ए है Okay, एंड सेकंड का मे बी डी Second C. second का C. Yes. मैम और डी. Okay, let's see. You all can write your answers. I cannot highlight it here. So you all can write your answer, and I'm also writing for you. Okay. So second, सबको C लग रहा है और D लग रहा है. C, ma'am. C, ma'am. Okay. Okay, D. Okay, let's see. मैम 2 का डी है मैम. 2 का D लग रहा है. Okay. Okay, so let's take पहले तो question number 1. ये fact based question है. अगर मैं exact count बोलूं, so it is somewhere around 30 trillion. अगर number of body, number of cells in adult human being. But because इन सारे options में से हमें right option consider करना है, so for you and 10 raised to power 14 is the right option. If you see this kind of number, so always go with this number. Okay, तो ये first question हो गया. So I was not expecting anyone to answer this one, but okay. Second question लेते हैं. The period between two successive cell division is. बच्चे दो successive cell division के बीच के period को हम क्या बोलेंगे? Exactly cell division के इंटरफेस बीच में. बोलेंगे क्योंकि इंटरफेस के बाद आपका सेल डिवीजन आता है, फिर सेल डिवीजन में वो फिर से जैसे yes, दो ma'am. डॉटर सेल बनते हैं वो लोग भी अपना इंटरफेस शुरू कर देंगे. Okay, so we won't call it growth phase, we won't call it cell cycle, we won't call it duplication. Think about it. Why not duplication, growth, or cell cycle? Think about cell cycle. सेल साइकिल का तो मतलब इंटरफेस और वो दोनों है ना, सेल डिवीजन, माइटोसिस. और डुप्लीकेशन सिर्फ सेल्स का. राइट, देखो अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी ध्यान से समझो. सेल साइकिल में तो इंटरफेस एमफेस सब कुछ आ जाता है, पहली चीज ये. दूसरा, जब एक्चुअली दो सक्सेसिव डिवीजन हो रहे होते हैं, यानी इनसे पहले अगर दो डिविजन्स हो रहे हैं तो उनके बीच में जो गैप है या फिर इनका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है डिवीजन के बीच में, सो व्हाई कांट वी कॉल इट सेल साइकिल? मींस आई एम अग्रीइंग विद द इंटरफेस, बट व्हाई आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाई कांट यू कॉल इट ग्रोथ फेज और सेल साइकिल? बिकॉज सेल डिवीजन है, सो डुप्लीकेशन इज कंप्लीटली आउट. मैम बट सेल साइकिल तो पूरा ही है ना, तो एक सेल डिवीजन के बाद उस जो फेज स्टार्ट होगा वो नए सेल का नया सेल साइकिल होगा, बट फिर भी उसमें पहले तो इंटरफेस ही आता है ना. ओके ओके ग्रोथ फेज इंटरफेस पे बात है. okay, so getting your question, so the option is D, because I also think about D. D is right. Just want to know the detailed answer from all of you कि आप concept समझ रहे हो कि नहीं. Okay, let's come to question number 3, which is fundamental property of all living organisms.
So I'm some C. people मुझे लगता are. है 3 का सी। Mhm. मैम सी लग रहा है ग्रोथ। Okay. मैम ग्रोथ तो हाँ मैम ग्रोथ। मैम Right. ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स भी करते हैं ना, मतलब सिर्फ फिजिकली ही। मैम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ Correct. होता ही है। रेस्पिरेशन Yes. Mehak, पॉलीफेरा में नहीं होगा, right. So answer. जर्मिनेशन हम लोगों में नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी हम में नहीं होता। ओके। सो बच्चे, एक्सप्लेनेशन इज राइट। ग्रोथ जो होता है, चाहे यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म शो दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड अबाउट नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की एग्जैक्टली नॉन लिविंग बींग्स में ग्रोथ होता है, बट दैट इज व्हाट, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स या एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं। दे डू नॉट ग्रो इन अ प्री एग्जिस्टिंग मैनर, कि प्री एग्जिस्टिंग पार्टिकल से नया पार्टिकल बन रहा है, ऐसा नहीं होता उनका। सो उनका ग्रोथ इज डिफरेंट। उसमें न्यू पार्टिकल्स की लेयरिंग होती है, जिसकी वजह से एक नॉन लिविंग मैटर हमें ग्रोथ, उसका साइज वाइज वो हमें बड़ा लगता है। बट यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग काउंट से भी है, यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग पर्टिकुलर सेल इलोंगेशन से भी है, ओके, एंड ओवरऑल ग्रोथ का मीनिंग पॉपुलेशन से भी है। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ मीन्स डायरेक्टली पॉपुलेशन, देयर इज नो इलोंगेशन, देयर इज नथिंग। उनका काउंट बढ़ता है, इट मीन्स उनका पॉपुलेशन बढ़ता है। फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जाम्पल लाइक अस, हमारे लिए ग्रोथ का मीनिंग क्या है कि हमारा काउंट तो बढ़ ही रहा है हमारी बॉडी में, नंबर ऑफ सेल्स, जिससे हमारा मास बढ़ता है, साथ में हमारी कम्युनिटी का काउंट भी बढ़ रहा है, प्लस हमारे एग्जिस्टिंग जो सेल हैं उनका साइज एंड शेप भी इलोंगेट होता है। सो ग्रोथ हैज मल्टीपल मीनिंग्स, दैट्स व्हाई द आंसर इज सी। ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे मैम, मल्टीपल क्वेश्चंस फर्स्ट का आंसर क्या है मैम? मैम यस। मैम रेस्पिरेशन क्यों नहीं हो सकता था? रेस्पिरेशन बच्चे, दिक्कत ये है ना कि बेसिकली रेस्पिरेशन जो है वो आपके ग्रोथ का पार्ट है, बिकॉज फॉर ऑल द थिंग्स यू नीड एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में कह रहे हैं। रेस्पिरेशन, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दूसरे मीडियम से भी ग्रो करते हैं, लाइक रेस्पिरेशन दे कैन कट ऑफ फॉर सम टाइम और मे बी दे कैन सबसाइड। किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन कह लो कि वो दे गो इनटू सम सॉर्ट ऑफ, कह लो डॉर्मेंट फेज में भी चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीड प्लांट्स का कैटेगरी ले लें, तो वहां पे रेस्पिरेशन तो होता है, बट सीड्स तो टेम्पररली डॉर्मेंट स्टेज में चला गया है, तो उस टाइम पे उसके लिए वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहा जब तक कि उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा। सो दिस वे यू कैन कंसिडर ग्रोथ एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, क्योंकि रेस्पिरेशन ये आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गया, दैट इज मींस आपको एनर्जी चाहिए, तो वो आपके सेलुलर लेवल पे एक मेटाबॉलिक एक रिएक्शन काइंड ऑफ कह लो कि केमिकल रिएक्शन है, उसका रिजल्ट क्या है, दैट इज ग्रोथ। वन ऑफ द रिजल्ट इज ग्रोथ, नॉट ओनली ग्रोथ, बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे, उनमें से एक आपका ग्रोथ हो जाएगा। सो दैट इज द प्रॉपर्टी, वो एक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। व्हाई? बिकॉज बैक एंड पे क्या हो रहा है, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें से एक रिएक्शन रेस्पिरेशन है। अंडरस्टूड? सो दैट इज द रीजन वी आर चूजिंग ग्रोथ हियर। ओके मैम। ओके, मैम यस। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बोला था आपने? फर्स्ट ए, फर्स्ट का आंसर इज ए। सो ए, बी एंड सी। Okay, let's move on. This question we have 4 to 11, I think. No, 4 to 10 only. मैम फिफ्थ वन का ए लग रहा है। Fifth का A, okay. मैम फिफ्थ का बी है और फोर्थ का डी है। यस, Fifth B फिफ्थ का and B। यस मैम फिफ्थ का बी। okay. Fourth option D and fifth option B. Okay.
मैम 6th का A, हम्म, मैम 7th का 1, ओके, मैम 7th का D है मैम, और Okay. 6th का A है। 6th का A, 7th D, मैम 8 का D, मैम 9th का 2nd, okay, 8th D and 9th का 2nd, it means B. टेंथ shall I show you? सब कुछ दिख रहा है 10th में? हाँ यस मैम, मैम, 10th में दिख रहा है। yes मैम, Okay. मैम 10th का C है मैम। 10th का C. Okay. Let's take one by one सारे questions देखते हैं. Question number 4. Which factors are required for growth? No doubt सारे ही options सही हैं. इनमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा कि सारे options गलत हैं. But option number D has all the factors. मतलब A, B, C जो भी कुछ mentioned है वो सब कुछ D में दिया हुआ है. So it is more accurate for you. तो वो क्या क्या है? Increase in cell mass, duplication of genetic material, division, assuring that each daughter cell receives equal complete set of genetic material. ये एक सारे important characteristics कह लो या points जो कि growth के time पे required है. Okay, so that is why D is the right answer. Then with how many cell reproduction starts? Only single cell is required because we have studied about binary fission, asexual mode of reproduction. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक बैक्टीरिया हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, इनमें सिंगल सेल से डॉटर सेल्स भी बन जाते हैं. सो 1 सेल इज रिक्वायर्ड. द मिनिमम सेल रिक्वायरमेंट इज 1. सो ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is present in maximum number? Of course, somatic cell. Somatic cell यानी हमारे रेगुलर सेल्स, हमारे गैमेट्स को छोड़ के या जर्म सेल्स को छोड़ के, उसके बाद उसके अलावा जितने भी फंक्शनल सेल्स होते हैं वो सारे के सारे सोमैटिक सेल्स होते हैं. सो दे आर मैक्सिमम इन नंबर. सो देयरफॉर ऑप्शन इज ए. देन क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्किंग एट द एंड ऑफ व्हिच स्टेज डज सेल एंटर मायोसिस. बच्चे अभी सर्कल वो साइकिल याद करो अब पूरे के पूरे सेल डिवीजन का कि कौन से स्टेज के बाद माइटोसिस में एंटर करते हैं. G2 फेज के बाद. राइट, G2 फेज के बाद एंटर करते हैं. सो आंसर इज डी. देन व्हाट इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग G2 फेज? तो प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सारी की सारी सिंथेसिस, क्योंकि M फेज यानी माइटोसिस होगा. माइटोसिस के लिए सारी प्रिपरेशंस के रिक्वायरमेंट है. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वी हैव डिस्कस्ड, क्या डेवलप होगा? सेंट्रियोल्स ही पहले तो डेवलप होंगे. सबसे पहले सेंट्रियोल्स होंगे या फिर स्पिंडल फाइबर्स होंगे. इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ जाता है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. अब सेल डिवीजन प्रॉपर होने वाला है. दैट्स व्हाई. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो ऑप्शन 8 का आंसर इज डी. इज इट क्लियर एवरीवन? 7 and 8 दोनों क्लियर? yes मैम, yes मैम. सो क्वेश्चन नंबर 9 का सीक्वेंस, अगर 7 और 8 आता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 भी आ जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 9, विच वन? मैम बी. B1 B1. B1 राइट, B1 इज करेक्ट. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो एनी of is right. No, so option B is correct. Then question number 10, synthesis of RNA and protein takes place in which of the cell cycle? कौन से phase में होगा? Synthesis of RNA and protein we just discussed
मैम जीवन में होगा। करेक्ट। सो बेसिकली आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस आपका जीवन यानी प्रिपरेटरी फेज में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन 11 to 15. मैम 11th का भी है। इसमें 11th का बी। ट्वेल्व का सी है मैम, सॉरी ए है। ओके, 12th का ए। मैम 13, मैम डी। ओके हाँ मैम 13th का डी है। ओके, यस मैम 13 का। मैम 14 का ए। मैम 14 का ए है। ओके, मैम 15 के दो और नहीं दिख रहे ऑप्शन। यस मैम। let me show you. Here is the option. Question number 15. Okay, let's do one thing. हम पहले 11 to 14 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम 15th पे I will show you. Okay, question number 11 is saying during which phase can nucleolus be observed clearly. अब तो ये सारी चीजें हमने तो ऑलरेडी देखी हुई है। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियोलस पार्ट ऑब्जर्व होता डीएनए है। कंडेंस्ड होता है। करेक्ट। सो Yes, ma'am. इसके बाद राइट जस्ट क्रोमोसोम में बदलना है। ओके करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, सो द ऑप्शन इज बी हियर। देन क्वेश्चन नंबर 12, which structure can be observed at the surface of centromere during metaphase. मेटाफेज के टाइम पे आप कौन सी चीज सबसे पहले देखोगे? दैट इज काइनेटोकोर्स, क्योंकि एट द एंड उसके बाद मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा? एनाफेज। और एनाफेज में क्या होता है? यही काइनेटोकोर्स को सेपरेट हो जाएंगे। राइट, यही काइनेटोकोर्स के साथ बाइंड करना पड़ेगा और इनके साथ क्विकली फटाफट ये क्या होंगे? विद इन द सेकेंड्स डिवाइड होंगे। सो दैट इज व्हाई काइनेटोकोर। सो ऑप्शन इज ए। देन क्वेश्चन नंबर 13, माइटोसिस एक्चुअली मीन्स व्हाट? बोथ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ऑफ कोर्स रिडक्शन होगा माइटोसिस में। No. Division of nucleus only? No. You cannot say, or not only cytoplasma also. So दोनों का combination, nucleus भी divide हो रहा है, cytoplasma भी divide हो रहा है, but with a copy of it. Okay, so that is why answer is D. Question number 14. The role of mitosis is not merely to divide a cell into two daughter cells, but to ensure genetic continuity from one cell generation. The mechanism ensuring genetic continuity is what you have all said. Answer is A. यस मैम ए। So Yes, identical, ma'am, A होगा। just now I explained कि उनका क्या करना है, they have to make sure कि DNA भी copy होना चाहिए। So identical set जब तक नहीं बनेगा तब तक डॉटर दो इक्वल हाफ में दो सेट्स नहीं बनेंगे to the daughter cells and there will be abnormality then. Okay, so this is all about the answer. सबको समझ में आया? Any doubt in any question? I think these are the easiest part, easiest है ये सारे questions. यस मैम। नहीं मैम, सब समझ में आ गया। Okay, so question number 15, this is the half two options. If you have read it, then I will show you the other half also. 1 minute मैम। Okay. Yes ma'am, you can scroll up. Okay.
मैम 15 का डी है। 15th D, okay. Okay, I am showing you from 16th to 20 here. मैम 16 का सी। Okay, 17 का बी। 17th B, okay. एटीन्थ का भी बी है मैम। Okay, 18th B. मैम 19 का डी है क्या? Okay, let's see. Let's check 19th का D है कि नहीं. मैम 20 का भी डी है। Okay, 20th यस का मैम D. 20th का भी डी है। Okay, let's go back to question number 15 once again. क्या पूछ रहे हैं? Substances that interface with microtubule function interfere with cell division because few people have said option D. Option D क्या कह रहे हैं? Because microtubules are essential for the disappearance of the nuclear membrane, and without them the chromosome have to stay close together within the nuclear membrane to be able to separate into two nuclei. Okay, चलो मैं फिलहाल के लिए agree कर रही हूँ, but let's look into the other options also. Option A is saying कि microtubules are distributed equally in the new cell. पहली चीज बच्चे, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट दे आर आस्किंग? मैम आप एक बार बता दो। ओके, व्हाट दे आर सेइंग कि जो भी सब्सटेंसेस मींस सेल डिवीजन को प्रोग्रेस करवाने के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं. That's what they are asking, or how microtubule function leads to cell division in simple language. कि किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल का कंट्रीब्यूशन या उसका फंक्शन विल लीड टू सेल डिविजन, ये बात कह रहे हैं. और कहाँ पे उसका क्या रोल आ रहा है माइक्रोट्यूब्यूल का, दैट्स दे आर आस्किंग. पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द न्यू सेल्स. यू डोंट नो दैट, आप बता नहीं सकते डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द न्यू सेल्स. अभी तो हम सेल डिविजन के बारे में बोल रहे हैं, वी कैन नॉट जज अबाउट द न्यू सेल्स. सो ऑप्शन ए तो कहीं से भी इस क्वेश्चन के मीनिंग के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा. सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिसाइज सेपरेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनटू ईच डॉटर सेल्स. ओके, यू कैन से, आप इस थॉट को होल्ड कर सकते हो. नेक्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, विदाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोकाइनेसिस कैन नॉट टेक प्लेस एंड मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, एंड अ मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड. So this is completely out of the box part. Reason is cytokinesis क्या at the end क्या होने वाला है? साइटोप्लाज्मा का डिवीजन यानी न्यूक्लियस डिवीजन तो हो गया है. लास्ट में जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है तब कह रहे हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बिना वो चीज नहीं हो सकती और मेम्ब्रेन्स जो है वो नहीं बन सकते. सो दिस इज नॉट राइट, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें इन्वॉल्वमेंट था उनका? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में. यही तो मेजर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था. ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, राइट? अगर एनिमल सेल है तो सेंट्रियोल्स बना देते हैं, तो ये इनका मेजर फंक्शन रहता है. उसके अलावा और कोई फंक्शंस नहीं है इनके पास. अभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और डी एक बार ध्यान से देखो. अब फिर से क्वेश्चन सब लोग रीड करो. व्हाट दे आर आस्किंग, आई एम रिपीटिंग अगेन. सब्सटेंस दैट इंटरफेस विथ माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इंटरफेयर विथ सेल डिविजन बिकॉज, मतलब सब्सटेंस दैट इंटरफेस विथ माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन यानी माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शन के साथ जो साथ में मींस दे थिंग्स व्हिच गेट अलोंग विथ माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन इंटरफेयर विथ सेल डिविजन. क्यों? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिसाइज सेपरेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. रीजन अब याद करो, एनाफेज.
एनाफेज में क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर के साथ अटैच्ड होते हैं एंड उस पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स को इक्वल हाफ में 2 डॉटर क्रोमोसोम्स में डिवाइड करना होता है। ये इनका मेजर फंक्शन है। तभी तो जब साइटोकाइनेसिस होगा तो डॉटर सेल्स में उनको सेपरेट प्रॉपर इक्वल क्रोमोसोम्स का सेट मिलेगा, अदरवाइज हाउ इट विल बी पॉसिबल, it won't be possible then. Okay, so this is the basic function of microtubule. That's what they are interfering in. So question complicated है, बार बार इसको रीड करोगे तो जरूर आपको ये बात समझ में आएगी। डी ऑप्शन, आई एम अग्रीइंग टू ध्रुव की दिस कैन बी द ऑप्शन, बट वो बात पहले ही उन्होंने कह दिया है कि इनके फंक्शन का मेजर कंट्रीब्यूशन या इंटरफेरेंस कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली कहाँ पे किस चीज को सेल डिवीजन के कौन से पार्ट में कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहे हैं। सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग इनटू सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम, जो कि एनाफेज के टाइम पे होता है। जस्ट यही इसका सिंपल मीनिंग है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। ये काइंड ऑफ कह लो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। सो दिस इज एज पर मी द आंसर शुड बी बी। इफ यू थिंक एनीथिंग एल्स, आपको लगता है कि कोई और थॉट प्रोसेस है, कोई और ऑप्शन होना चाहिए, देन आई एम ओपन टू योर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। इफ एनी वन ऑफ यू थिंक कि कुछ और है, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 15 यू हैव टू रीड इट अगेन, गो बैक टू द कॉन्सेप्ट, वापस से आपके नोट्स देखो, क्लास रिकॉर्डिंग देखो एंड फिर से मॉड्यूल वगैरह जो भी रेफरेंस आप लेते हो वहां से देखो और समझो कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। ओके, so ये about question number 15, little complicated question. Next comes question number 16. Question number 16 पूछ रहे हैं, the stage of mitosis during which nucleolus disintegrates and chromosome appear is known as. 16th का answer will be C. okay, correct. क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू क्रोमेटिक मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं इन प्रोफेज, बट मेटाफेज में मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं। बट साथ में क्या कह दिया, न्यूक्लियोलस डिसइंटीग्रेट्स, तो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस प्रोफेज में स्टार्ट होता है, मेटाफेज में तो पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। ओके, दैट इज व्हाई द आंसर शुड बी सी। देन क्वेश्चन नंबर 17, क्रोमोसोम कैन बी काउंटेड ड्यूरिंग, अभी जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, सो द आंसर शुड बी मेटाफेज। मेटाफेज के टाइम पे मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म में रहते हैं, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स काउंट करने हैं, देन यू शुड ऑलवेज चेक द मेटाफेज स्टेज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट पर्टिकुलर सेल। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहे हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स एंड स्पिंडल अपीयर्स एट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स यानी कंप्लीटली वो रप्चर हो जाएगा और स्पिंडल प्रोमिनेंट हो जाएगा, वो किसमें होगा? पीपल हैव सेड अर्ली प्रोफेज, बट आई थिंक लेट प्रोफेज। व्हाट यू ऑल थिंक? देखो, प्रो मेटाफेज एंड लेट टीलोफेज तो ए एंड सी तो चला गया है, क्योंकि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। मेटाफेज और टीलोफेज तक तो इनका कोई सीन ही नहीं होता है, इनके डिसइंटीग्रेशन का सीन नहीं होता है, ये रीअपियर भले ही होने लगते हैं, सारा ऑपोजिट वर्क हो रहा होता है। मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस प्रोफेज में ही होता है। अर्ली में उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, स्मॉल स्मॉल पोर्स बनने लगेंगे, उनका फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स अपीयर होंगे, राइट। लेट प्रोफेज में वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेशन मींस कंप्लीटली गायब हो जाना, दैट इज डिसइंटीग्रेशन, एंड स्पिंडल फाइबर प्रोमिनेंट हो जाता है, अपीयर हो जाता है एंड रेडी फॉर देयर वर्क। ओके, सो द आंसर इज डी हियर। Next is question number 19. It is saying the separation of two chromatids of each chromosome during early anaphase is initiated by. People have said all of the above. Now read the question again and all the options again. ध्यान से पढ़ो और अपने कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करने की कोशिश करो। 19 का फिर सी होना चाहिए। What other people are thinking? Question कह रहा है कि separation of two chromatids of each chromosome during early anaphase is initiated by spindle fiber जब तक kinetochore से attach नहीं होगा,
डजेंट मैटर वो इलोंगेटेड है कि नहीं, सेंट्रोमियर किस पोजीशन पे है, कहाँ पे अटैच्ड है, कौन से क्रोमोसोमल फाइबर्स हैं, डजेंट मैटर। जब तक स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच नहीं होगा तब तक सेपरेशन स्टार्ट भी नहीं होगा। सो कह रहे हैं कि सेपरेशन इज इनिशिएटेड बाय व्हाट, तो इनिशिएटेड बाय अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स विद काइनेटोकोर। नो डाउट, ऑल आर राइट, ऑल आर करेक्ट, बट ये कह रहे हैं इंटरैक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद द क्रोमोसोमल फाइबर्स। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द इंटरैक्शंस कि सेंट्रोमियर और क्रोमोसोमल फाइबर्स के बीच में, क्रोमोसोमल फाइबर इज नथिंग बट स्पिंडल फाइबर ओनली, तो उनके बीच में क्या इंटरैक्शन हो रहा है, डजंट बॉदर्ड अबाउट इट। Then second is elongation of metaphytic spindle. Metaphytic spindle is again a type of spindle fiber only. उनका elongation still उसमें बात सही लिखी है but still main point नहीं लिखा है, that is attachment with the kinetochore. So वही key factor है उनके division का, क्योंकि जब kinetochore से attach होते हैं तब क्या होते हैं, they dissolve the protein, right? सेंट्रोमियर में प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसे डिसॉल्व कर देते हैं और वो बॉन्ड क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। सो दैट इज द रीजन ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टेलोफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इज, everyone has said D. The last stage of karyokinesis, okay, kind of agree. More or less opposite of prophase, okay, just now we discussed it. Then the stage where spindle fibers are absorbed in cytoplasm, of course, जो भी चीजें प्रोफेज में होती हैं उसका ऑपोजिट टेलोफेज में हो जाता है। So option D is correct, all of the above here. Okay, okay, let me show you next set of question. Question number 21 to 24. ट्वेंटी का डी। Okay. मैम 24 का बी। 24P, okay. बी बी Yes, zygote। getting it. मैम 23 का ए लग रहा है। Okay. मेरे को भी। What about 22? Any wild guess? I'm not good at maths. मैं पहले ही बता रही हूँ. मैम एक मिनट कैलकुलेशन चालू। Okay, do that. मैम 22 का बी होना चाहिए। Okay. Anyone else? किसी और को कुछ लगता है? Any of the questions जिसका कोई और ऑप्शन होना चाहिए? Okay, all are correct actually. Question number 21. Let's take first. The term karyokinesis is used for
पूरे के पूरे ओवरऑल चेंजेस अकरिंग इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग द सेल डिविजन। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन ए आप नहीं बोल सकते, क्योंकि डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ उस एक इवेंट को आप कैरियोकाइनेसिस नहीं कह सकते। सेकंड इज चेंजेस अकरिंग एट एनाफेज व्हेन क्रोमोसोम मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। नो, नॉट येट। रीजन इसकी वो अभी भी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो प्रॉपर क्रोमेटिक मटेरियल और न्यूक्लियस नहीं होते। देन इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग इंटरफेस, नॉट एट ऑल। कैरियोकाइनेसिस आप कब कहोगे? जब पूरे के पूरे चेंजेस न्यूक्लियस में होंगे और पूरा का पूरा न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड होगा तभी। सो ऑप्शन डी इज मोर सुटेबल टू द क्वेश्चन। Then question number 22. Dhruv, would you like to explain? I'm not good at maths, so won't be able to explain you that much. मैम एक्चुअली इसमें ऐसा है कि अभी जैसे 10 to the power 1024 सेल्स है ना, तो हम एक डिवीजन से दो सेल बनते हैं, तो मतलब वो एक एक डिवीजन के बाद है ना 2 की पावर में हो रहा है। सेकेंड डिवीजन के बाद 2 to the power 4, मतलब 4 सेल बनेंगे, और फिर थर्ड डिवीजन के बाद 8 सेल्स बनेंगे, 2 to the power 3, 2 क्यूब। तो ऐसे 2 to the power 10 जो होता है वो 1024 है, तो मतलब 10 डिवीजन होने चाहिए। Okay, good. टोटल सेल्स बनने के बाद। Right. Everyone understood it? Take this question as your homework. Try to understand this question. ओके, थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करना है इसमें। बस एक सेल से कितने सेल बनते हैं, यानी एक डिवीजन में कितने सेल बनते हैं, वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने डिविजन्स में कितने सेल्स बनेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग बेसिकली। सो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर बी इज करेक्ट। Then question number 23, the difference in the division of a plant cell and animal cell is in 23 का आप सबने ए बोला है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ओके, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन? मैम वो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन वो फरो फॉर्म होता है और फिर धीरे धीरे करके वो सेल फॉर्म ओके, दो सेल में कन्वर्ट होता है। ओके, सो बेसिकली क्या है, एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस कहाँ पे अकर हो जाता है? बेसिकली एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस एक ही चीज का आता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, तो उनका जो डिवीजन है, जो फरो फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, वो फरो फॉर्मेशन का उसमें स्पिंडल फाइबर का जो पार्टिसिपेशन होता है एंड अदर गोल्गी बॉडीज एंड अदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनल्स का जो पार्टिसिपेशन है, इट इज लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन ही ऐसी चीज है जो कि इनमें प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग बनेगी, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पहले बनाना इंपॉर्टेंट होता है, देन सेल वॉल विल लीड टू वो क्या सिक्रीट करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। So this is how it is different in plant cell and animal cell. Rest other parts are almost same. There is no as such big difference. Then question number 24. They are saying during which phase of phase 1 of the meiosis does the process of synapsis occur? Synapsis हमने कहाँ पे देखा था? प्रोफेज में सिनेप्टिक कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। और ये सब चीजें क्यों बन जाती हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसी के लिए बनता है। तो वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, ओवरलैप करते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स जो होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्मेशन होगा। तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता ही क्यों है? फॉर द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। एंड उस पूरे के पूरे इस फिनोमिनन को हम सिनेप्सिस कहते हैं, एंड दैट अकर्स इन जाइगोटी। ओके, जाइगोट मीन्स फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, जाइगोटिन यानी होमोलॉगस फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले दो क्रोमोसोम्स, यानी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन में डाउट कॉन्सेप्ट वाइज? व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? Okay, everyone is understanding. I need response. If you Yes. know, you can type Yes. also. Yes, No need ma'am. to say, you can type also. That is fine. Okay, let's move on to question number 25 to 29.
मैम 26 का ए। ओके, 26 का ए। मैम 25 का सी। ओके, मैम मुझे लगता है 25 का ए है। ओके, 25 का ए। मैम 27 का सी। 27th सी। मैम 28 का सी है। 28 सी। मैम 29 का बी। 29 बी। ओके, एनीवन एल्स? किसी और को कोई ऑप्शन कुछ करेक्ट लग करना है? एनी अदर आंसर्स? ओके, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर माइटोसिस हो रहा है तो पर्टिकुलर डॉटर सेल्स अपनी पेरेंट सेल से रिजेंबल करते हैं, बट मियोसिस के टाइम पे क्या हो रहा है कि उनका एक तो नंबर भी हाफ रिड्यूस हो जाता है, दूसरा उनके कंस्टिट्यूएंट्स भी चेंज्ड रहते हैं, उनका जो बेसिक जेनेटिक्स रहते हैं वो भी बदल जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कि जाइगोटिन में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इन अनदर लैंग्वेज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर तो कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, sorry about that. Yes, I was saying crossing over यानी recombination, जो कि first तो ये clear है, ये this answer is clear, but if you have noticed crossing over 3 options में दिए हुए हैं, तो B हटा दो, बाकी 3 में अब डाउट आ रहा है। उसके बाद important चीज, crossing over तो है, but उनका segregation भी होता है। segregation का meaning है अलग होना, मीन्स सेपरेट होना, दैट इज सेग्रीगेशन। अगर नहीं पता तो अभी लिख लो सेग्रीगेशन का मीनिंग क्या है। एंड आई बिलीव यू डोंट अंडरस्टैंड जेनेटिक्स दैट मच, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू, बट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है? हमारे पास हर कि अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का, जीन्स होती है ना तो उसका जो असॉर्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली होता है। राइट एक राइट, का इसका डिपेंड नहीं है। Right. Let me just share the screen and then I will explain you in little better way. So इसमें exactly क्या कह रहे हैं कि overall जो genes है, independent assortment का meaning कि overall जो genes होंगे वो pair में exist होते हैं, यानी हमारे पास हमारे mother and father का individual characteristics है। Suppose let's take your height. So height can be, सपोज फादर से टॉल आया है, मदर से ड्वार्फ आया है, दिस इज द वन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे क्रोमोसोम्स में और एक जीन में इस टाइप का सेट ऑफ अरेंजमेंट है। वाइल मियोसिस एक्चुअली ये इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। अलग होना मीन्स दिस विल बी इन डिफरेंट सेल, दिस कैरेक्टरिस्टिक विल बी इन डिफरेंट सेल। इट मीन्स कि अगर किसी क्रोमोसोम का पास जितना भी सेट है, एक तो ये डुप्लीकेट भी होगा, तो मींस ये होमोलॉगस सेट और इनका क्रॉसिंग ओवर तो हुआ ही है, साथ में इनके पास भी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स थे इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स पे या एडजेसेंट क्रोमेटिड्स पे, वो भी सेपरेट होंगे।
ओके, सो वो जो इंडिविजुअल एक पेयर है कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी सेपरेट होगा और दे आर मेंट टू बी सेपरेटेड, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बस एक ही रह सकते हैं, पेयर नहीं रह सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तभी तो फिर दूसरे सेल के साथ फ्यूज होगा तब पेयर बनेंगे, पहले ही पेयर होके चले जाएंगे तो क्या होगा, एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इन्हीं चीजों की वजह से होते हैं, जब ये वाला चेक पॉइंट जो होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता तब। सो दैट इज व्हाई द ऑप्शन शुड बी सी, दैट इज क्रॉसिंग ओवर सेग्रीगेशन विच इज ट्रू, यानी अलग होना, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मींस अलग तो हो रहे हैं बट वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी नहीं है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपना अपना अपने आप को रिजेंबल करते हैं, डिपेंड करता है कौन से डोमिनेंट है कौन से रेसेसिव है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एवरीवन अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन? इट इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। एवरीवन अंडरस्टूड इट प्रॉपरली? एनी डाउट्स किसी भी कॉन्सेप्ट में? मैम इसका सी होगा क्या? राइट, सो द आंसर शुड बी सी, बिकॉज उनको इंडिपेंडेंटली अलग होना है। दैट्स व्हाट आई सेड, वो इंडिविजुअली अपना कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर पेयर। मींस सपोज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कलर, अगर आपका सपोज इफ आई टेक द आई कलर, ओके, मदर हैज द ब्लू आई कलर, फादर हैज द ब्लैक आई कलर, तो वो जो आई कलर है उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स उस जीन का पेयरिंग भी है इन क्रोमोसोम्स। तो उसे अगर आप टू इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझते हो तो वो दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है अपना कलर रिप्रेजेंट करने के लिए इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड सेग्रीगेशन तो है ही, दे आर गोइंग टू सेपरेट बट इंडिपेंडेंटली। सेपरेशन होने से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक एक जीन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द मीनिंग। एवरीवन अंडरस्टूड? गॉट द रीजन क्यों इसका ऑप्शन सी होना चाहिए? yes मैम। Okay, what about other students? Understood properly? क्योंकि डाउट अभी भी Yes, सॉल्व ma'am. होगा, Yes, बाद ma'am. में क्वेश्चन पेपर में मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि वी डिडंट गेट द क्वेश्चन, दैट आई डोंट नो। मैम यस, मैम अभी कनेक्शन थोड़ा चला गया था, आपने स्क्रीन शेयर करा था ना तो स्क्रीन दिखा नहीं। ओके, स्क्रीन पे ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस यही बताया आपको कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मीनिंग क्या है। आई जस्ट टुक वन एग्जांपल ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक्स और ये बताया कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से जब सेपरेट होते हैं तो उनका जो इंडिविजुअल जीन का कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल हैम्पर नहीं होता। सो आई गिव वन सिचुएशन दैट इज रिलेटेड टू आई कलर ऑफ पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स। तो अगर मदर का कोई आई कलर है एंड फादर का कोई आई कलर है तो नेक्स्ट जनरेशन में कौन सा आई कलर होगा, इसका जो कंप्लीट रीजन है दैट इज द डोमिनेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। बट अगर फर्दर उनको सेपरेट होना हुआ उस पर्टिकुलर आई कलर्स को तो उससे उनके कैरेक्टरिस्टिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक विल इज गोइंग टू शो इट्स डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ब्लू भी वैसे ही शो होगा, डिपेंडिंग कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है और एग्जैक्टली उनका नेक्स्ट जनरेशन में क्या सिचुएशन उस पर डिपेंड करता है। अलग होने से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स व्हाट आई सेड। अंडरस्टूड? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट व्हिच वी वर डिस्कसिंग। Mehak, you understood? Got the answer? यस मैम। Okay. Next comes question number 26, which is the longest phase of meiotic division. Longest phase, I think we have discussed this. So prophase 1 is the longest, of course 5 subdivisions हैं इनके पास. Okay, so that is why they are the longest one. Then question number 27. At which stage the homologous chromosomes separate due to repulsion but are yet held by a chiasmata? यहाँ पे देखा था ये वाली चीजें, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है, डिप्लोटीन। ओके, डिप्लोटीन, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? डिप्लोटीन इज करेक्ट? यस मैम। राइट। सो कायस्माटा यानी हमने सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में क्या सिचुएशन देखा था कि वो जो उनका कॉम्प्लेक्स है वो बॉन्ड ब्रेक होने लगता है बट टिप पे या एक एंड पे वो क्या
क्या रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, स्टिल अटैच्ड. Okay, so that is that particular stage or that phenomena happens in the diploidine stage. उसके बाद question number 28. Question number 28 is asking if there are 4 chromosomes present during prophase 1, how many chromosomes are there in each cell at the end of anaphase 2? So the answer should be 2. 2. Yes, ma'am. Right. C. अभी एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम डिवाइड होंगे, राइट. उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है बट उनका सेट जो होता है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है. ओके, सो एनाफेज 2 के केस में क्या हो रहे हैं, वो कंप्लीटली अब हाफ में डिवाइड हो रहे हैं, यानी इट्स टाइम कि अब ट्रू डॉटर सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे. ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट. उसके बाद कम्स क्वेश्चन नंबर 29. 29 is saying meiosis 2 is basically what? माइटोसिस के जैसा सही होता है. राइट. सो मियोसिस में फर्स्ट फेज में ही रिडक्शन हो जाता है एंड सेकेंड फेज में फाइनल उनके सेल्स की कॉपी बन जाती है और डॉटर सेल्स डिवाइड हो जाते हैं. सो दैट इज द रीजन वी गेट 4 डॉटर सेल्स. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 31, 32, 34. मैम 30 का C. ओके, यस मैम 30 का C. मैम 31 का B है. 31 का बी. ओके, थर्टी टू का C है। ओके. मैम 33 का A. ओके, 33A. मैम 32 का A है मैम. 32 का A. यस मैम. ओके, मैम 33 का B है. 33B. What about question number 34? मैम 34 का D. 34D. Okay. Okay. Anyone else? किसी को कोई और आंसर लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में?
Okay, let's take all the questions one by one. Question number 30 क्या कह रहा है? Significance of meiosis is associated with sexual reproduction. तभी तो रिडक्शन होता है, ताकि सेट अगर हाफ होंगे तो जाइगोट के टाइम पे फिर से हाफ एंड हाफ एक प्रॉपर सेट बना लेंगे, नॉर्मेलिटी मेंटेन करने के लिए. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट, अगेन आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो आप लोग ये मुझे एक्सप्लेन करो कैसे सोचा कि 150 मियोटिक डिविजन्स होंगे तो 100 पोलिन ग्रेन्स बनेंगे. व्हाई 150? व्हाई नॉट अदर नंबर? मैम 25 होना चाहिए, क्योंकि एक बार डिवीजन होता है तो 4 सेल बनते हैं ना. ओके, तो मतलब 25 डिविजन हो जाएंगे तो 100 बन जाएंगे सर. ओके. ओके, सो आई ऑल्सो बिलीव 25 होने चाहिए, क्योंकि एक सेल से क्या बन रहे हैं, 4 सेल्स बन रहे हैं, तो 25 4 टाइम्स इज 100. सो दैट इज द रीजन कि आपका आंसर बी रहेगा. देन क्वेश्चन नंबर 32. Question number 32 is saying number of meiotic divisions required to produce 400 seeds. Pollen grain नहीं, 400 seeds produce करने के लिए कितने meiotic divisions की requirement है? 500 मैम. 500 why? बच्चे कैसे अंदाजा लगाया आपने? मैम वो फॉर्मूला था ना इसमें मॉड्यूल में, नंबर ऑफ meiosis for formation of n seeds equal to n plus n by 4. Okay, n plus n by 4. तो आपने कैसे सोचा? तो n और l की जगह आपने क्या क्या नंबर पुट किए? n मतलब number of seeds, so 400 plus 400 divided by 4, so 500 is the answer. Okay. So अगर नंबर ऑफ सीड्स कम है और डिवीजन ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ सेल्स तो ज्यादा हो जाएंगे ना. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सीड्स, यानी ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फ्यूजन इज ऑलरेडी देयर. 400 होगा मैम, क्योंकि Right. एक डिवीजन तो है. अभी जैसे मियोसिस हो रहा है तो बन रहा है, मियोसिस से वो भी बन रहा है, क्या बोलते हैं, हमारा पोलन ग्रेन भी बन रहा है और दूसरा ओवम भी बन रहा है. और फिर उसके बाद में दोनों फ्यूज होंगे, दोनों को बनाना है और दोनों को फ्यूज कराना है, तो उसके लिए 400 डिवीजन. ओके, करेक्ट. सो बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम सीड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोलिन ग्रेन्स नहीं होगा तो सीड्स हो गया. तो यहाँ पे यही लॉजिक लगा हुआ कि ऑलरेडी आपके पास 2 गैमेट्स फ्यूजन हो रहा है, तो आपको कितने चाहिए? 400 फीमेल गैमेट भी चाहिए और 400 मेल गैमेट भी चाहिए, राइट? मींस 400 आपको पोलन ग्रेन चाहिए और 400 आपको ओव्यूल भी चाहिए फॉर द फ्यूजन, फॉर द 400 सीड फॉर्मेशन. तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा, करेक्ट? सो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स भी उतने ही अकर हुए होंगे. दैट इज द रीजन कि 400 सीड्स एक प्लांट में प्रोड्यूस कर पाओगे. सो पोलन ग्रेन का कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, सीड का कॉन्सेप्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगेन take question number 31 and 32 as your homework. Okay, ताकि आप समझो कि ये questions क्या कह रहे हैं. और next class में we are going to discuss all these questions. Okay, मैं भी समझ के आऊंगी, आप भी समझ के आओ. Tell me with better answers कि आपको कितना समझ में आया these type of questions. Calculation की कितने meiotic divisions की requirement है, किस पर्टिकुलर मियोसिस कह रहे हैं, माइटोसिस कह रहे हैं, कितने डिविजन्स में कितने सेल्स बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पे बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना. रीजन क्या है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है यहाँ पे, और आती हुई चीजें फिर रह जाएंगी और कुछ नहीं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्कोर बेस्ट मार्क्स, इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 अगर देखें, 33 कह रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? Number of chromosome is maintained in all cells. Okay, let's think yes, right है for temporarily. Then is saying it is important process for evolution. Okay, because recombination हो रहा है, crossing over हो रहा है. Okay, see, due to division, cell can maintain their efficient size. Okay, let's think कि temporarily ये भी correct है. And then a very significant contributing of mitosis is cell repair. Okay, सेल रिपेयर एंड एफिशिएंट साइज. करेंटली मैं इसको साइडलाइन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे चेक पॉइंट्स
होते हैं ऑलरेडी, जो इस सारे प्रोसेस में चाहे माइटोसिस हो रहा हो या मियोसिस हो रहा हो उनका ख्याल रखते हैं। तो ये तो साइडलाइन कर दो। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 33 में ए और बी कि क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड इन ऑल सेल्स। ओके, इट इज ट्रू, बट उससे भी ज्यादा ट्रू पार्ट क्या है, क्रोमोसोम तो मेंटेन होता ही है, साथ ही साथ इवोल्यूशन का जो रिजल्ट है वो मियोसिस की वजह से ही आया है। बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या हुए हैं, मल्टीपल नए वेरिएशंस, कॉम्बिनेशंस हुए, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा विल रिजल्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तभी हम क्या होते हैं, अलग अलग दिखते हैं, वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, प्लस एवरी पर्सन कैरीज डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, और उनमें कोई ना कोई जेनेटिक लेवल पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता ही है। तो वो जो यूनिकनेस है वो क्यों होता है, बिकॉज मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और दूसरे लैंग्वेज में मैं कहूँ तो रिकम्बाइन हो रहा है जेनेटिक मटेरियल इन न्यू पैटर्न। और ये अगर कई सालों तक ये चीज मेंटेन हुआ तो इट रिजल्ट इनटू समथिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं, जो आपने डार्विन थियरी में कभी सुना होगा। ओके, तो ये जो फिटेस्ट का सर्वाइवल होता है, इट मींस शायद कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ऐसा पैटर्न है जो हार्श एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सके। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, मियोसिस। ये हमारी बॉडी नेचुरली सेलेक्ट, मींस नेचर ने पर्टिकुलर स्पीशीज को वो नेचुरली दिया हुआ है, दैट दे हैव टू, दिस इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर देम। So that's why answer is B. Then comes question number 34. Which of the following matters? Okay, mitosis and meiosis are similar. इनमें से कौन से events जो हैं similar हैं in both mitosis and meiosis? Okay, what you all thought? Option B. मैम डी लग रहा है, मैम D लग रहा है। क्योंकि डी में दोनों में सेपरेशन हो रहा है ना। Okay. जो भी माइटोसिस में तो पेयर्ड क्रोमेटिड्स में होगा, उसमें होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम्स में होगा, मियोसिस में Okay. तो दोनों में सेपरेशन तो हो रहा है। Okay. Okay, both include separation of paired chromosome, but I think meiosis में तो एक separation ऐसा भी होता है जहाँ पे paired chromosomes नहीं, sister chromatids भी separate होते हैं, the meiosis one part, right? वहां पे क्या हो रहा है, sister chromatids separate हो जाते हैं, तो paired chromosomes तो separate होते नहीं है। Okay, let's think कि D is right. Okay, then both process occurs in all kind of cells. What do you think? Option C का? नहीं, क्योंकि मियोसिस तो सिर्फ उनमें ही होता है, Right, सिर्फ germ cells में ही होगा। जर्म सेल्स नहीं होता है। Okay, so C completely exclude हो गया। Then both have pair of homologous chromosomes. Can we say that? नो मैम, क्योंकि माइटोसिस में तो है नहीं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसमें But एक ही mitosis में chromosome already homologous chromosomes तो होते हैं, दोनों पेरेंट्स के दोनों सेट माइटोसिस में होते तो है ना, that you can acknowledge, no doubt। Yes, उनके ma'am, बारे में but, बताया नहीं जाता है, बट थिंक अबाउट इट, 2n सेट का 2n ही रहता है आफ्टर द डिविजन, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम तो रहता ही है ना माइटोसिस में, राइट? और मियोसिस में तो होता ही है, क्योंकि वो तो हाईलाइटिंग पॉइंट है, उनका सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट, तभी तो वो डिवाइड होंगे, ठीक है। और तीसरा, बोथ आर प्रोसीड बाय डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन माइटोसिस में भले ही होता हो, बट मियोसिस में हाफ हाफ है, सिर्फ लास्ट में ही डीएनए रेप्लिकेशन होगा, बट ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, डिवीजन पहले रिड्यूस होता है फिर रेप्लिकेट होता है, ये इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मियोसिस का। तो ऑप्शन बी एक बार ध्यान से देखो, व्हाट यू ऑल थिंकिंग कि होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर इन बिगिनिंग, माइटोसिस और मियोसिस दोनों के ही बिगिनिंग में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते तो है ना? डज एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम? यस मैम। व्हाट अबाउट अदर उसमें क्या स्टूडेंट्स? लिखा हुआ है कि पेयरिंग हो रहा है हम लोग उसको, राइट, सी अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं तो पेयरिंग तो माइटोसिस के टाइम पे भी होगा। क्यों होगा, ये इवेंट हाईलाइट नहीं किया जाता है, बट क्यों रहता है, क्योंकि उसकी कॉपी बननी होती है। वो होगा इन एस फेज के टाइम पे, उनकी जब मल्टीपल
डीएनए सिंथेसिस हो जाता है ना, तब उनकी कॉपी जब बनती है तभी वो क्या हो जाते हैं, क्या बोलते हैं कि होमोलोगस पेयरिंग होती है। एंड माइटोसिस में किस टाइम पे ये होगा, जब मेटाफेज हो रहा होता है, जब इनकी अलाइनमेंट हो रही होती है। अलाइनमेंट के टाइम पे इनको इस तरीके से डिवाइड करना पड़ता है कि वो क्या कर सके, कंप्लीटली एक एक पेयर जो हो वो दूसरे साइड जाए, यानी डबल प्लेटिंग होती है, राइट। मेटाफेज के टाइम पे 2 प्लेट्स बनते हैं ना, 2 मेटाफेज प्लेट्स बनते हैं कि नहीं, 2 लाइंस बनती है हमेशा। यस मैम। इन माइटोसिस, इफ यू ऑल कैन रिमेम्बर, रिकॉल, मियोसिस में एक ही लाइन बनती है, माइटोसिस में 2 लाइन बनती है। तो 2 लाइन जब बनती है तो वो 2 लाइन के टाइम पे क्या होता है कि हमेशा सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं, क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस पेयर्ड हैं वो अलग होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई सेइंग यस राइट? मैम। तो वो जब कंप्लीटली अलग हो रहे हैं तब उस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के 2 ऑल्टरनेट क्रोमोसोम्स अलग हो रहे हैं ना। Okay, let me show you diagrammatically. You can point out if you are finding it difficult to understand, you can point out कि ये हमें सही नहीं लग रहा है। Okay, चलो इमेजिन कर लो, प्लेट्स, नंबर ऑफ प्लेट्स भूल जाओ, आपको बस मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस बता रही हूँ कि सपोज ये मेटाफेज बन रहा है और इक्वेटोरियल प्लेट बन चुका है। अभी हमने माइटोसिस में क्या देखा था कि इनका क्या होगा, बेसिकली माइटोसिस के मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर इनको कंप्लीटली 2 प्लेट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। अब 2 इक्वल हाफ डिवाइड करने के लिए वी ऑल्सो नो कि उनका डिविजन कैसा होता है। उनका डिविजन इस तरीके से होगा कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स के जो 2 क्रोमोसोम होंगे वो दोनों क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे। ओके, सिमिलरली मियोसिस के टाइम पे भी मेटाफेज होमोलॉगस क्रोमोसोम्स तो दिखाया ही जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो मुझे लगता है कि दैट इज important in this matter, both the characteristics. That's what I'm thinking. What you all thinking? Any other explanation जो आपको लगता है होना चाहिए? Okay, as per me, जो पेयर है मींस इनकी जो लाइनिंग है, दिस इज हाउ दे आर। एंड यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स इनसे अटैच्ड होंगे। यस मैम, उसमें बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एंड पे एक सेट, इस पर्टिकुलर एंड पे दूसरा सेट, राइट। तभी तो इनको एग्जैक्ट इक्वल हाफ मिलेगा, और एग्जैक्ट इक्वल हाफ के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का एक साथ अलाइन होना जरूरी है। तो वो जो अलाइनमेंट हो रहा होता है ना, दैट अलाइनमेंट इज होमोलॉगस पेयरिंग। सो इट इज प्रेजेंट इन माइटोसिस आल्सो। एंड मियोसिस तो आपको पता ही है, क्योंकि वो क्या बनाएंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मैम इसका मतलब ये है कि माइटोसिस में जो पेयरिंग है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है और उसमें ट्रांसवर्स पेयरिंग होता है, मतलब आजू बाजू में होता है ना। मियोसिस में राइट, स्टार्टिंग में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा एक के ऊपर एक, और उसमें मतलब जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है माइटोसिस में, तो वो जो भी दोनों हैं वो वन आफ्टर द अदर अरेंज है। राइट, यू आर गेटिंग इट करेक्टली। वेट, मैं सबको पिक्चर शो करती हूँ अबाउट मेटाफेज ऑफ बोथ द थिंग्स। ओके, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस ऑल्सो एंड मियोसिस ऑल्सो। Okay, let's discuss it. Okay, so that हमारी better understanding हो सके कि exactly इनका arrangement कैसे होगा and how they are going to be separated. Okay, can everyone see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is the
डायग्राम ऑफ मेटाफेज। और बेसिकली क्या हो रहा है, इन सारे क्रोमोसोम्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। सिमिलर ऐसी सिचुएशन किसमें होती है, इन मियोसिस कंडीशन आल्सो। ओके, तो यही वो सेक्शन है जहां पे पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग कलर यूज किए हैं। रेड कलर शोज सम कैरेक्टरिस्टिक, वन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, एंड उसी कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा सेट या दूसरा रूप ब्लू कलर शो करेगा। तो इनका पेयरिंग जब तक नहीं होगा प्रॉपरली, वो कंप्लीटली सेपरेट कैसे होंगे और इक्वल हाफ्स में डिवाइड कैसे होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन। ये लिटरल मीनिंग है डुप्लीकेशन का। तो डुप्लीकेट होने के लिए उनको एग्जैक्ट इक्वल हाफ्स में भी डिवाइड होना होगा, और एग्जैक्ट इक्वल हाफ के लिए एक ही चांस मिलता है ना, एनाफेज तो एक ही बार होता है, और एक ही चांस में क्विकली उनको सेपरेट करना होता है। तो अगर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का लाइनअप रहेगा तो चांसेस है ना कि अपर हाफ में कोई और सेट चला जाएगा और लोअर हाफ में कोई और सेट चला जाएगा। पता चला आई कैरेक्टरिस्टिक्स तो गया ही नहीं इधर। हमें ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करना है। तो पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स की पेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू एवरीवन कि यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि which of the following matters mitosis and meiosis are similar. Matters means चीजें, कौन सी चीज माइटोसिस और मियोसिस में सेम है, ये बस डायरेक्टली यही पूछ रहे हैं, नथिंग एल्स। तो सेम क्या होगा, होमोलॉगस पेयरिंग। क्योंकि अनलेस होमोलॉगस पेयरिंग नहीं हो रहा तब तक क्या होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, वेदर इट इज डुप्लीकेशन, वेदर इट इज रिडक्शन, डजंट मैटर। Okay, so this is the thing which they want to explain. So the answer is B here. Okay, then comes, okay, let's take this question and then we will end the session because ज़्यादा session लंबा नहीं कर सकते, बाकी students को preparation भी करनी है for tomorrow's exam. Okay, let's answer question number 35. Let's take this as last question. ये तो easiest है। प्रोफेज। करेक्ट। अभी अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज होता तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता, बट यहाँ पे तो एग्जैक्टली सेम है। एस्टर्स कहाँ पे अपीयर होंगे, एस्टर्स यानी स्टार लाइक स्ट्रक्चर, तो वो सेंट्रियोल और उसके अराउंड स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है, अपीयर कब शुरू होता है, इन द प्रोफेज। ओके, सो दिस इज ऑल द आंसर्स। आपको मैंने होमवर्क दिए हैं कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड, ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी 2 क्लास जो है वो मर्ज होने वाली है विद PNMT 1। तो अभी मैं बच्चों को मॉर्फोलॉजी करा रही हूँ। हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप मॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स एनकाउंटर करोगे, मे बी फ्लोरल फॉर्मूला और सम टॉपिक्स विच आर एट द एंड। वी विल डिस्कस इट वन मोर टाइम, सो टेक इट एज योर रिविजन सेशन। एंड सेकेंड, जो सेकेंड क्लास होगी उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वैसे ही ओवरऑल मॉर्फोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सो दिस वे आई ओनली अटेम्प्टेड दिस वीक कि आप लोगों का थोड़ा पुराने टॉपिक का एक बार रिविजन हो जाए। आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। रीजन इज कि आप लोगों की क्लासेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, रिविजन कुछ भी नहीं हो रहा है। सो बॉटनी रिविजन आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे। वैसे भी बॉटनी में बच्चे लेस इंटरेस्टेड रहते हैं। सो आई रियली वांट कि आप हर टाइप के क्वेश्चन, सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इनकाउंटर करो ज्यादा से ज्यादा। आई विल टेक द रिविजन मोर एंड मोर फॉर यू। तो जितने ज्यादा एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई हमारी, तो क्या होगा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने हर टाइप के क्वेश्चन से डील कर चुका है, सो एवरीथिंग विल बी केक वॉक फॉर यू। ओके, वंस इफ यू आर रेडी, इफ यू आर सेइंग कि आप लोगों का ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का रिविजन हो चुका है, देन आई विल सेंड दिस PDF. इट हैज मेनी क्वेश्चंस विद आंसर की आल्सो। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। सो आई विल सेंड दिस PDF इन द ग्रुप, okay, so that you all can solve this at your home and do more revision. Okay, so this is about today's session. All the best to other students who has exams. Baki bache, I think we have to meet tomorrow again, if I'm not wrong. So maybe tomorrow we have to meet again. Okay, so bye everyone. Take care. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye everyone.